Remember, almost a decade before, just the 10 to 15 years back, there were being no such sort of the things that this the celebration and the observation of this the Women's Day is to be made. But right now, within these 10 to 15 years, the people are accepting it and just acknowledging the things. And there is being the change in the mindset of the persons also. And that's why this International Women's Day all over the world is being celebrated. This is what the changes that are being seen in this the last 10 to 15 years. Now, today, women are in all the spheres of this the life. They are working, they are just working side by side with their male counterparts. And not only that, even from a very small sort of this the job, as you are being well aware of, that even in Delhi, the bus drivers are being also the women. Even in Patna airport, today if you have gone through this, the Times of India, you will find that 5 to 6 auto drivers in Patna are being also the female. And not only that, even the pilots are also the female. It's not that they are occupying only one particular places, they will are being found everywhere. Even most of the CEOs, Chanda Kochar in the ICICI Bank, so they are being also this the female. So the thing is being that this inequality should be stopped at any cost. That is being the purpose of this the International Women's Day. We should respect, unless and until they are not getting the proper due respect from the society, this inequality will continue. Moreover, with the time passing, it is being seen and this being really difficult. Though for those particularly women who are being the working, they have to maintain a striking balance in between that of this the household duties and even the duties over here. Those who are working in the schools, those who are working in the offices, really it becomes very difficult. Whenever we used to go to home, we are just getting the ready-made sort of the foods that are being prepared by our those who are being the homemakers or the wife. But those who are being the working, like you people who are being over here, really it's becoming, the life is being very difficult and you people are doing it quite effectively. So again, that you people deserves this appreciation, how you manage to do all these sort of things. Salute to all of you. Now, with time again, as far as the moods of the parents are being concerned, it's been also changing very fast. Previously, the parents doesn't allow, if you remember your days, parents doesn't allow to move their girl child outside, whereas this gender bias was being done with that of the boys. They were free to go anywhere, but at the same time, whenever any sort of the girl child used to go outside, there were being some restrictions. But right now, the parents are thinking that the children, plus the girl child, are being allowed to go outside and even without any sort of the restrictions. Because they have full faith in their girl child. Because they are being nowadays educated. Previously what used to happen, usually the girl or the woman were being confined to that of the four walls. And they were busy in that of the household activities. But right now, what I have told, the mindset is being changing. The mindset of father, brother, husband, and the society in a lot are being changing towards men. At the same time, today, although it's being a International Women's Day, but if I am not going to mention anything about the men, it doesn't feel nice, at least for me. So I would like to say that it is the man who is going to support the females or who is going to support their counterpart, and ultimately it is being seen that both of them are being one, and this oneness can change the society in the upcoming days. I remember whenever we were in the class 6 or 7, we used to study the line of this Maithili Saran Gupta. अबला जीवन तेरी यही कहानी आंचल में दूध आंखों में पानी. So that simply clearly depicts what was being the condition of the women previously. But right now, it is being something entirely different. And not only that,
A female have to, or a woman have to look after the two families. There's a connection, it's a connecting bridge in between the two families. They are being a very strong warriors. Not with that of the help of the sword, they are still not doing this the warrior, but through the love, through the heart, they are somewhat conquering the two families together. So, in the last, because a number of programs are being there, I think 15 or 16 programs are being there, at last I will say, with one sighing, खोल दो पंख मेरे अभी और उड़ान बाकी है. This is for all the women over here. खोल दो पंख मेरे अभी और उड़ान बाकी है. जमी नहीं है मंजिल मेरी अभी तो पूरा आसमान बाकी है. लहरों की खामोशी को समुंदर की बेबसी ना समझो. जितनी गहराई अंदर है बाहर उतना तूफान बाकी है. So with these words, again let me have the best wishes for the International Women's Day to all my dear learned colleagues over here and all the smiling and the beautiful presence. Thanks a lot. Thank you, sir. उड़ान बाकी है, छोटी सी जमीन नापी है, अभी सारा जहान बाकी है. All the wonderful women over here, cheers for all of you, and I welcome heartily all the colleagues, those who are supporting us, all the male colleagues, because without them we couldn't do anything. Here we are at workplace, or be there we are at school front. Support is always there, and support is mutual. So बाकी है, beautiful. Thy name is woman. Kindness, thy name is woman. Courage, thy name is woman. So आई एक औरत से सभी औरतों को आज के शुभ अवसर की बधाई. सदा सौभाग्यवती रहो, सदा सौभाग्यवती रहो. सुनकर कैसे जी जाते हैं हम, कैसे जी जाते हैं हम, जबकि चारों तरफ दीवार है. बंदिशों अंकुशों का दौर दोनों ही पार है. फिर भी नई पौध को सींचने हम हमेशा तैयार हैं. हतप्रभ रह जाता है जमाना, ऐसा एक वार है. दरकती दीवारों में कई खिड़कियां अब है हमने लगवाई. एक औरत से सभी औरतों को आज सदा सौभाग्यवती रहो. सुनकर खुश होते हम, इसमें भी आदमी को ही आशीर्वाद देते हम. भाइयों बेटों को बड़ी लालसा से पालते हम. ईश्वर से भी अपने लिए कुछ नहीं मांगते हम. माँ ने हमें अजीब सी घुट्टी है पिलाई. एक औरत से सभी औरतों को
कैलेंडर, मुझे याद है वो कैलेंडर, मुझे याद है वो कैलेंडर जो मुझे प्रभावित कर गया था कुछ ऐसा। छठी क्लास में पढ़ती थी मैं, जब वो कुछ मुझे लिखा गया ऐसा, कुछ अलग सा था वो। हर पन्ने पर स्त्रियों की तस्वीरें थी, आकर्षक, खूबसूरत, आंखों में चमक, कुछ कर गुजरने की चाहत में। हर तस्वीर एक सपने दिखाती थी, पेंटिंग करती हुई, स्टेथोस्कोप गले में टांगे हुए, हेलमेट पहनकर साइड का मुआयना करती हुई, किताबें पढ़ती हुई, कुछ न कुछ लिखती हुई, कहीं खाकी वर्दी में तो कहीं पायलट के लिबास में। अब तक वो छवि मेरे मानस पटल पर छाई हुई है, अब तक वह छवि मेरे मानस पटल पर छाई हुई है। खुश हूँ मैं आज, खुश हूँ मैं आज कि कैलेंडर की सारी तस्वीरें अब तस्वीरें नहीं रही। खुश हूँ मैं आज कि ये कैलेंडर की सारी तस्वीरें अब तस्वीरें नहीं रही। ये सभी चलती फिरती सी मेरी आंखों के समक्ष नजर आती है। 40 वर्षों के बाद जेवरों से लदी दुल्हन या नारी भाव भंगिमा से भरी प्रणय निवेदन करती हुई नारी की तस्वीरें इन बीते वर्षों में बिल्कुल बदल गई। आत्मविश्वास से भरी हुई समाज में समानता और बराबर की भूमिका निभाती स्त्री आज एक व्यक्ति बनकर खुद को साबित कर ही गई। आज एक व्यक्ति बनकर खुद को साबित कर ही गई। उसे भी जीना खुद के लिए रिश्तों की गरिमा को निभाते हुए, रिश्तों की गरिमा को निभाते हुए वो अपना भी वजूद उभारना है, दबाना नहीं शोकेस की सजी कोई वह गुड़िया है, नहीं शोकेस की सजी कोई वह गुड़िया है, नहीं मनोरंजन की वस्तु या खोजिया है। वह भी है एक व्यक्ति, वह भी है एक व्यक्ति। आज है सबको ये स्वीकारना अभी। धन्यवाद। लेकिन इन सब बातों के बावजूद भी कुछ सवाल है जो मेरी ओर से है और कहीं ना कहीं आप सब भी इसमें कोरिलेट करेंगे। और ये यक्ष प्रश्न की तरह है। ये प्रश्न जो मेरा है ये किसी जेंडर विशेष तो नहीं, ये उस सोच को है जिसको हम पुरुषवादी सोच कहते हैं, जो बहुत सारी महिलाओं में भी पाई जाती है। तो मैं शुरू करती हूँ। यत्र पूजन्ते नारी तत्र वसन्ते देवता। इस श्लोक का तात्पर्य तुम समझे क्या? भोल गंवार पशु नारी ये सब ताड़न के अधिकारी हैं। तुलसी के इन भावों का अर्थ तुम सच में समझे क्या? तुम ही दुर्गा, तुम ही ब्रह्माणी, तुम शब्दता, तुम कल्याणी। अर्थ तो इसका समझे क्या? तुम ही भक्ति, तुम ही मुक्ति, तुम प्रकृति, तुम ही सृष्टि, तुम सृजनहारा, तुम सहारा। मंतव्य तुम इसका समझे क्या? बड़े हो ज्ञानी, बड़े हो ध्यानी, बड़े हो ज्ञानी, बड़े हो ध्यानी, बल से छल से हो शक्तिशाली। तो बताओ जरा, नारी को सच में पूजा है क्या? हाँ, पूजा तो है। फिर ये जरूर किया होगा कि पत्थर की मूर्ति को वस्त्र भेंट अर्पण कर उसके चौखट पर मत्था टेका होगा। पत्थर की मूर्ति को वस्त्र भेंट अर्पण कर उसके चौखट पर मत्था टेका होगा। पर जीवित शाश्वत उस देह प्राण को मनुष्य कभी समझा क्या? तुलसी ने रामायण लिख डाली, तारण की है नार अधिकारी। और तुलसी का भाव ये था कि वो तारती है जीवन नैया, बनकर मां, भगनी, भार्या, जगैया। पर तुमने तुलसी के पदों का भी क्या खूब व्याख्यान किया। केश पकड़कर चौसठ घसीटा, तारण को ताड़न सिद्ध किया। हाँ, माना हूं मैं स्वाहा, स्वधा भी मैं ही हूं। माना हूं मैं स्वाहा, स्वधा भी मैं ही हूं। विष्णु को जगाने वाली योग माया भी मैं ही हूं। सप्तशती के 13 खंडों में वर्णित वो दिव्य पुंज, वो शक्ति स्रोत भी मैं ही हूं। फिर पूछती हूं मैं तुमसे बनाऊं कि चरणों की दासी और स्वाभिमान की आसी मैं ही क्यों? पति संग चिता में जलती, पति संग चिता में जलती, मान प्रतिष्ठा की वेदी में चढ़ती मैं ही क्यों? नाक कटी शूर्पणखा की, नाक कटी शूर्पणखा की, फिर अपहरण कारावास के शिकार मैं क्यों हूं?
नाक कटी शूर्पणखा की फिर अपहरण कारावास के शिकार मैं क्यों हूं, और कुटुंबों के बीच चौसर रण में दांव पर खड़ी असहाय बेचारी नार मैं ही क्यों। और आज के परिप्रेक्ष्य में घर बाहर की देहरी एक कर, घर बाहर की देहरी एक कर, चूल्हे चौके की रोटी सेक कर, अपने कर्म क्षेत्र पर भी हाशिए पर खड़ी मैं ही क्यों, अपने कर्म क्षेत्र पर हाशिए पर खड़ी मैं ही क्यों। मिट्टी की मूर्त से लेकर, मिट्टी की मूर्त से लेकर मिट्टी ही रह जाने को सिर्फ मैं ही क्यों। बराबरी की बात रहने दिया जाए, बराबरी की बात तो दूर है, हिस्सेदारी की पंक्ति में खड़ी मैं स्वयं सिद्धा प्रियंका वर्मा। And the rudeness of their rudeness when they are rude. But the shrewdness of their shrewdness and the rudeness of their rudeness are nothing to their goodness when they are good. So this is for female, all women, and birth is life and your family is soul for you. For all women, birth is life and family is soul. And together you balance them so beautifully. So best wishes on International Women's Day. With this I present a Hindi poem which I have been writing during my quarantine. It is quarantine collection. संगरोध संकलन है, उच्चारण में या किसी तरह की त्रुटि हो जाए तो क्षमा। Now the शीर्षक of this poem, शीर्षक इस कविता का है महापुरुष उठ जाते हैं, महापुरुष उठ जाते हैं। So महापुरुष is all women. आओ आज एक संकल्प अनोखी लेते हैं, आओ आज एक संकल्प अनोखी लेते हैं। धरती माँ को पुरुष के साथ, धरती माँ को पुरुष के साथ हम अनेक महापुरुष देते हैं। चिकित्सक, अभियंता, प्रशासनिक सेवा के महत्व को बाद में बतलाते हैं। चिकित्सक, अभियंता, प्रशासनिक सेवा के महत्व को बाद में बतलाते हैं। पहले हम कुछ एक पुरुष के साथ अनेकों महापुरुष उठ जाते हैं। घर घर प्रण लेकर बेटे को पुरुष और बेटियों को महापुरुष बनाते हैं। रसोई की बारीकी से लेकर मंडी की भाव तक से बेटे को अवगत कराते हैं। माँ बाप का मजबूत स्तंभ हम बेटियों को बनाते हैं। घर के अल्हड़ लाडले को सजाना संवारना सिखाते हैं। घर के अल्हड़ लाडले को संवारना सजाना सिखाते हैं। मन से मजबूत स्त्री को एक जबरदस्त योद्धा बनाते हैं। कोमल है कमजोर नहीं तुम, शक्ति का नाम नारी है, जग को जीवन देने वाली मौत तुझसे हारी है। कोमल है कमजोर नहीं तुम, शक्ति का नाम ही नारी है, जग को जीवन देने वाली मौत तुझसे हारी है। कोमल है कमजोर नहीं तुम। धन्यवाद। पीछे चल रहे हैं, टाइम हमारा आगे निकल गया। मेरे तरफ से मलखान पहलवान जी को धन्यवाद देते हैं। आपका तो दिन बन गया नारी दिवस पर। ये सही वंदना, तुम आके यहाँ सवाल थी, यही विमेन एम्पावरमेंट है। सही सही सही। मनोज शास्त्री सर और जीडी तिवारी सर बोल रहे थे कि मैं लॉ का भी स्टूडेंट हूँ और सारे लॉज जो हैं विमेन के लिए हैं, लेकिन दिक्कत ये है ना कि बहुत सारी विमेन जानती ही नहीं कि कितने लॉज हैं उनके फेवर में। इनके लिए दो लॉ सबसे बड़ा है, फादर इन लॉ और मदर इन लॉ। आदरणीय प्राचार्य महोदय, सभी भाइयों, और आज का दिवस मातृशक्ति को नमन, प्रणाम आप सबको। इतिहास जैसा भी रहा हो, पर वर्तमान बहुत अच्छा दिख रहा है और भविष्य तो और अच्छा दिखेगा। बस एक ही निवेदन, समय ज्यादा हो गया है, मैं भी सुनाता आपको।
एक ही निवेदन कि कुछ ऐसा वातावरण बने कि हमारा दिवस न कभी मने। और हम सब मिलकर के कुछ ऐसा करें कि आज का जो दिवस जो मनाया जा रहा है, कोई भी दिवस जब बनता है उसके पीछे कुछ कारण होता है। इतिहास हम सब खूब जानते हैं, वर्तमान ठीक है, भविष्य को संभालने की आवश्यकता है। स्त्री के बारे में जितना कहा जाए कम है। इतिहास में बहुत सारी बातें कही गई हैं, पर वर्तमान में स्थान आपका दिख रहा है, भविष्य भी आप ही का होगा। हम सब आपके साथ हैं। ढेर सारी शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू मनोज शास्त्री सर, ये बहुत अच्छे वक्ता है, लेकिन अभी टाइम की कमी है। दीपा मैडम प्लीज ऑन द डायस विद अपने मन की बात, क्योंकि हमारे मन में बहुत सारी बातें होती हैं और बहुत सारी बातें अनकही रह जाती हैं। और दीपा मैडम के लिए जोरदार तालियां। और ये भी बहुत सशक्त लेखिका है, लेकिन दिक्कत ये है ना, अपॉर्चुनिटीज अवसर तो तलाशने में थोड़ा टाइम लगता है, और फिर जब घड़ी की सुई तेजी से आगे बढ़ रही हो तो लगता है कि जल्दी से प्रोग्राम खत्म हो। और दीपा मैडम प्लीज तालियों के साथ दीपा मैडम का स्वागत। थैंक यू। बगैर माइक के मैं Yes, ma'am. ओके, तो बहुत सारी बातें जो मैं कहना चाह रही थी, उसमें से बहुत सारी बातें तो कविताओं के माध्यम से कह दी गई। प्रियंका वर्मा मैम ने कही और प्रिया मैम ने कही। मैं जब उन पंक्तियों को सुनती थी जब मैं छोटी थी, ये इन पंक्तियों को आज भी दोहराई गई है। खोल दो पंख हमारे, अभी उड़ान बाकी है, क्योंकि अभी आसमान बाकी, कुछ ऐसे पंक्तियाँ अभी कही गई है। जमीन पूरा आसमान बाकी। हाँ, तो मैं बहुत कम शब्दों में मैं ये कहना चाहूँगी कि इन पंक्तियों में कुछ सुधार लाने की ज़रूरत है, क्योंकि ये पंख हमारे हैं तो भला कोई और क्यों खोले। तो क्यों ना हम ये कहें कि खुले हैं पंख हमारे, अभी तो उड़ान बाकी है, क्योंकि ये अभी आसमान बाकी है। मुझे लगता है इन पंक्तियों को चेंज करके कुछ इस तरह से कही जानी चाहिए। और जैसा कि हमारे रेस्पेक्टेबल जीडी तिवारी सर ने कहा कि देवियों के बहुत सारे मंदिर हैं, देवताओं के मंदिर देखने में शायद नहीं उतने आते हैं, ब्रह्मा जी के मंदिर हैं तो पीछे चल रहे हैं, टाइम हमारा आगे निकल गया। मेरे तरफ से मलखान पहलवान जी को धन्यवाद देते हैं। आपका तो दिन बन गया नारी दिवस पर। ये सही वंदना, तुम आके यहाँ सवाल थे, यही विमेन एम्पावरमेंट है। सही सही सही। मनोज शास्त्री सर और जीडी तिवारी सर बोल रहे थे कि मैं लॉ का भी स्टूडेंट हूँ और सारे लॉज जो हैं विमेन के लिए हैं, लेकिन दिक्कत ये है ना कि बहुत सारी विमेन जानती ही नहीं कि कितने लॉज हैं उनके फेवर में। इनके लिए 2 लॉ सबसे बड़ा है, फादर इन लॉ और मदर इन लॉ। आदरणीय प्राचार्य महोदय, सभी भाइयों, और आज का दिवस मातृशक्ति को नमन, प्रणाम आप सबको। इतिहास जैसा भी रहा हो, पर वर्तमान बहुत अच्छा दिख रहा है और भविष्य तो और अच्छा दिखेगा। बस एक ही निवेदन, समय ज्यादा हो गया है, मैं भी सुनाता आपको। एक ही निवेदन कि कुछ ऐसा वातावरण बने कि हमारा दिवस न कभी मने। और हम सब मिलकर के कुछ ऐसा करें कि आज का जो दिवस जो मनाया जा रहा है, कोई भी दिवस जब बनता है उसके पीछे कुछ कारण होता है।
इतिहास हम सब खूब जानते हैं। वर्तमान ठीक है, भविष्य को संभालने की आवश्यकता है। स्त्री के बारे में जितना कहा जाए कम है। इतिहास में बहुत सारी बातें कही गई हैं, पर वर्तमान में स्थान आपका दिख रहा है, भविष्य भी आप ही का होगा। हम सब आपके साथ हैं। ढेर सारी शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू मनोज शास्त्री सर, ये बहुत अच्छे वक्ता है, लेकिन अभी टाइम की कमी है। दीपा मैडम प्लीज ऑन द डायस विद अपने मन की बात, क्योंकि हमारे मन में बहुत सारी बातें होती हैं और बहुत सारी बातें अनकही रह जाती हैं। और दीपा मैडम के लिए जोरदार तालियां। और ये भी बहुत सशक्त लेखिका है, लेकिन दिक्कत ये है ना, अपॉर्चुनिटीज अवसर तो तलाशने में थोड़ा टाइम लगता है, और फिर जब घड़ी की सुई तेजी से आगे बढ़ रही हो तो लगता है कि जल्दी से प्रोग्राम खत्म हो। और दीपा मैडम प्लीज तालियों के साथ दीपा मैडम का स्वागत। थैंक यू। मेरे ख्याल है बगैर माइक के मैं Yes, ma'am. ओके, तो बहुत सारी बातें जो मैं कहना चाह रही थी, उसमें से बहुत सारी बातें तो कविताओं के माध्यम से कह दी गई। प्रियंका वर्मा मैम ने कही और प्रिया मैम ने कही। मैं जब उन पंक्तियों को सुनती थी, जब मैं छोटी थी, इन पंक्तियों को आज भी दोहराई गई है। खोल दो पंख हमारे, अभी उड़ान बाकी है, क्योंकि अभी आसमान बाकी, कुछ ऐसे पंक्तियाँ अभी कई गई जमीन पूरा आसमान बाकी। हाँ, तो मैं बहुत कम शब्दों में मैं ये कहना चाहूँगी कि इन पंक्तियों में कुछ सुधार लाने की ज़रूरत है, क्योंकि ये पंख हमारे हैं तो भला कोई और क्यों खोले। तो क्यों ना हम ये कहें कि खुले हैं पंख हमारे, अभी तो उड़ान बाकी है, क्योंकि अभी आसमान बाकी है। मुझे लगता है इन पंक्तियों को चेंज करके कुछ इस तरह से कही जानी चाहिए। और जैसा कि हमारे रेस्पेक्टेबल जीडी तिवारी सर ने कहा कि देवियों के बहुत सारे मंदिर हैं, देवताओं के मंदिर देखने में शायद नहीं उतने आते हैं। ब्रह्मा जी के मंदिर हैं तो